السلام علیکم، میں مزمل شہزاد یوٹیوب چینل نالج اینڈ فن میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو چھوٹے چوزوں کی پرورش کے بارے میں اقدامات کے متعلق بتائیں گے۔ کسی بھی نسل کے چوزوں کو امراض اور مسائل سے محفوظ رکھ کے ان کی بہترین نشو و نما کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اہم ترین سرگرمیاں شیئر کی جا رہی ہیں جس سے چوزوں کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ اس دورانیہ میں بھرپور احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے آپ چوزوں کی اموات کو روک تھام کے ساتھ شرح منافع میں یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ پہلے ہفتے کے چکس کے لیے بھرپور قدرتی روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ دوسرے ہفتے کے مکمل ہونے تک چوزوں کا ڈھانچہ، چوزوں کی سٹرکچر مضبوط کیا جا سکے۔ سورج کی روشنی کی مدد سے رہائش گاہ کی جراثیم کشی کی جاتی ہے۔ یہی جراثیم کشی کمزور مدافعتی نظام والے چوزوں کو جراثیموں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس مقصد کے لیے صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان چوزوں کی زندگی کے آج 2 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں۔ اچھے حکمت عملی سے آپ بہتر منصوبہ بندی سے ان کی نشو و نما بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہیلدی نظر آ رہے ہیں۔ چوزوں کے لیے ابتدائی 2 ہفتے ان کی پرورش کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چوزے بہت ہیلدی نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران ہم ان چوزوں کی نشو و نما کے لیے جو بھی طریقہ کار اختیار کریں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ سٹارٹ کے جو اقدامات آپ کرتے ہیں یہ ان کی عمر بھر کے لیے، ان کی قوت مدافعت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان کے آغاز میں ان کی کیئر کر لی جائے گی تو اینڈ تک یہ بہت زیادہ ہیلدی رہیں گے اور شرح مورٹیلٹی میں بہت کمی کی جا سکتی ہے اور شرح اموات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ ان چوزوں کے ان سب مراحل سے آپ سب کو گزرنا پڑتا ہے۔ سٹارٹ میں جنہوں نے چوزے رکھے ہوتے ہیں، آپ اگر بروڈر سے نکالیں چوزے یا مرغی کے نیچے سے انڈے رکھ کے چوزے نکالیں تو ان کو سٹارٹ میں چوزوں کو ٹھنڈک سے بچانا ہے۔ ان چوزوں کو سٹارٹ میں ٹھنڈک سے بچانا ہے اور ان کو بروڈر میں یا کسی ہیٹ والے کمرے میں ضرور رکھنا ہے اور ان کی پراپر فلشنگ کرنی ہے۔ اور بلی اور اس طرح کے دوسرے انسیکٹ کو دور رکھنے کے لیے بہت زیادہ کیئر کریں اور ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی بروڈر میں انڈوں سے بچے نکلنا شروع ہو جائیں تو آپ ایک علیحدہ باکس میں، ایک علیحدہ بروڈر میں ان چوزوں کو شفٹ کرتے جائیں اور جیسے جیسے چوزے یہ نکلتے جائیں بروڈر میں ان کو علیحدہ بروڈر میں جیسے جیسے یہ چوزے انکوبیٹر میں سے نکلتے جائیں تو ان کو علیحدہ بروڈر میں شفٹ کرتے جائیں اور اس کے بعد بروڈر کا ٹمپریچر 34 مینٹین کریں۔ اس طرح آپ ان کو جو 48 گھنٹوں تک بروڈر کے اندر رکھیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیں اور ان کو پینے کے لیے بھی کچھ نہ دیں تاکہ ان کا جو باڈی کا ٹمپریچر ہے وہ مینٹین ہو، کیونکہ ابتدائی دنوں میں چوزے کو وہی ٹمپریچر، وہی ماحول چاہیے ہوتا ہے جو اس کو انکوبیٹر میں ملا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انکوبیٹر میں ٹمپریچر 37 اراؤنڈ اباؤٹ 37 رہا ہوتا ہے، تو جیسے ہی یہ عام روم ٹمپریچر پر آتے ہیں تو ان کی قوت مدافعت گر جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں انہیں بروڈر میں شفٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔
1 سے 2 दिन ब्रूडर में रखने के बाद अब हम अगला मरहला करेंगे। जो अगला काम करेंगे वो है इनकी फ्लशिंग। इनकी फ्लशिंग करना बहुत ज़रूरी है। फ्लशिंग करने के बहुत से फ़ायदे हैं। फ्लशिंग करने से इनका जो है मैदा है, जो इनका पेट है, वो साफ़ हो जाता है और इनको इनकी बीट की बीमारी नहीं लगती और इनमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो आपने सबसे पहले इसकी फ्लशिंग करनी है। फ्लशिंग करने के लिए आप चीनी, गुड़, शक्कर या और मीठा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाज़ार से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना हुआ मिल जाता है, वो ले लें। वो इनको 4-5 घंटे के लिए वो पिलाएं और उसके बाद की आमद के 2 हफ्ते पहले इन सब चीज़ों का आपने अरेंजमेंट कर लेना है। तो आपने इनका जो रूम है वो तैयार कर लेना है, जहाँ इसको इनको रखना है। आपने इनकी तैयारी आपने मुकम्मल कर लेनी है और बाज़ार से एंटीबायोटिक, ORS, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें पहले से अरेंज करके रखें और चूज़ की हरकत और सकनात का मुशाहदा करना और उनका बर्ताव को समझना, इस तरह की महारतें आपको हासिल होनी चाहिए। आगाज़ में पहले, दूसरे या तीसरे दिन चिक्स की इतनी ज़्यादा मवाद नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये दूसरे, तीसरे या तीसरे दिन का अख्ताम होता है तो ये ख़दशा लाहक होता है कि इनकी अमवात में इजाफ़ा हो सकता है, यानी चौथे और 5वें दिन से लेकर 9वें 10वें दिन तक। इस दौरान आपका टारगेट होना चाहिए कि ना सिर्फ अमवात रोकनी है, बल्कि अच्छी जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाना है। और इस मकसद के लिए सबसे पहला मरहला उन तमाम बुनियादी ज़रूरियात सहूलतों से आरास्ता ऐसा माहौल तैयार करना है जो चिक्स को आगाज़ में दरकार होता है। दूसरा मरहला चूज़ों की हरकत और बर्ताव का मुशाहदा करना है। जल्द से जल्द इक़दामात उठाना, जैसा कि चिक्स का इकट्ठा होने की सूरत में हरारत, गर्माइश में इजाफ़ा करें। सुस्त और बीमार चूज़ों को स्टार्ट में ही आपने अलहदा किसी डिब्बे में या अलहदा किसी केज में शिफ्ट कर लेना है। फ्लशिंग करने के बाद आपने चूज़ों को इब्तदाई फीड देनी है। इब्तदाई फीड में आपने साफ़ सुथरी बाज़ार से बनी हुई ज़ीरो साइज़ फीड भी ले सकते हैं, या आप घर में बाजरा, गंदम, मकई इनको ग्राइंड करके ख़ुद फीड भी बना सकते हैं। याद रहे कि स्टार्ट में जो आपने फीड देनी है वो बहुत साफ़ सुथरी हो, इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तीसरे दिन के बाद आपने इनको एक एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना है। एंटीबायोटिक के कोर्स के लिए आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल बाज़ार से आसानी से मिल सकते हैं। वो आपने 1-2 कैप्सूल 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके इनके आगे 3 घंटे के लिए रखना है। ये अमल आपने 3 दिन लगातार करना है। इनसे इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त और छोटे मोटे जो मसाइल होंगे स्टार्ट में, वो ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे। एंटीबायोटिक का कोर्स मुकम्मल करने के बाद आपने इन्हें मल्टीविटामिन का सिरप देना है पानी के अंदर। वो आपने इनको 3 दिन लगातार पानी के अंदर 1 सीसी मल्टीविटामिन 1 लीटर पानी के अंदर सॉल्यूशन की फॉर्म में देना है। मल्टीविटामिन सिरप में आपने लेज़ोविट सिरप यूज़ कर सकते हैं, या वेटरनरी शॉप से आपको मल्टीविटामिन बना बनाया मल्टीविटामिन मिल सकता है। वो मैंने साथ ही आपको शेयर कर दिया है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और डेली बेसिस पे आपने इन्हें थोड़ी देर के लिए, हाफ घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए खुली जगह पे छोड़ना है, ताकि ये अच्छी तरह से मूवमेंट कर सकें। इनकी मूवमेंट करने से इनकी जो खुराक है वो अच्छी तरह हज़म हो जाएगी और इनके निज़ाम बेहतर रहेगा। इससे इनको बदहज़मी के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने चिक्स को हमेशा साफ़ सुथरा पानी वाटर फीडर में दें जो बाज़ार से मिलते हैं, और ख़ुराक के लिए भी फीडर जो हैं वो यूज़ करें और उनमें उनकी वक्तन फ़वक्तन उनकी सफाई करते रहें।
ये थोड़ी छोटी छोटी एहतियातों से आप अपने चिक्स को अमवात से बचा सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें। और किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।